کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ حضرت والا اپنے وہ کوئل کی کوک میں چھوٹی سی نعت پاک پیش کریں، پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو۔ اسی لیے میں نے کسی شاعر کو زحمت نہیں دی ہے، حضرت مولانا اور آپ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنی اپنی کرسیوں کے ساتھ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اور یہاں قریب تک جہاں تک چہرہ دکھے تھوڑا سا بڑھا لیجیے، جہاں تک آپ مجھے بے تکلف دیکھ سکے وہاں تک اور قریب آ جائیے۔ پیچھے والے حضرات بھی تھوڑا سا بڑھ جائیں، مولانا کا اصرار ہے تو آپ آ جائیں۔ سلو کر لیں گے، آواز تو ہم کو دقت ہوگی، مائک سے ہم بہت دوری رکھتے ہیں۔ پیچھے والے حضرات بھی اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ہی بات میں سب نے لبیک کہے، بڑی اچھی بات۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کچھ لب تو ہلے ہیں، کچھ خاموش ہی رہے، اور دکھائی ہم کو بہت پڑتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے، یہ بڑے اکابر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، ایک بعد دیگرے بہتوں کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے پاک ہونا، وضو ہونا شرط نہیں ہے، برابر پڑھیے، چلتے چلتے پڑھیے، بیٹھے بیٹھے پڑھیے، جب بستر پہ چلے جائیں تو لیٹے لیٹے پڑھیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اگر یہ عادت بنا لیں تو ایک نہ ایک دن ضرور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوگا۔ یہ عادت بنا لیں کہ اللہ کے محبوب کے احسانات امت پر بے شمار ہیں۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بدن میں جتنے بال ہیں سارے بالوں میں جان پنہائی جائے، ساری جانیں باری باری مدنی آقا پر قربان کر دی جائیں، جب بھی محبوب دو جہاں کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کہ کون مکان کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ۔ حضرت شریف دیکھ لیجیے، اب کہا ہے مولا ابراہیم صاحب نے تو کچھ نہ کچھ تو کون مکان کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کون مکان کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کتنی بلندیوں پہ نمایاں
मुस्तफा, कितनी बुलंदियों पे नुमाया है मुस्तफा। और ये शेर काबिल तवज्जो है। कोई पागल है क्या भैया? है कोई? अरे बहुत लोग हट्टे होते हैं, इसकी कोई बात नहीं, ये भी एक बीमारी है। और एक चीज जरा याद रखिएगा, जो कानों में लगा के सुनते रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, और हम जानते नहीं हैं। इतना जानते वो लगा के चलते रहते, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न लगाता, फिर कुचल के चला जाता, घर वाले उठा लाते हैं। इतना जानते, बाकी हमको अता पता ज्यादा है नहीं। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा नुकसान है इससे। अरे बोलो, नुकसान है कि नहीं? कानों का नुकसान, आंखों का नुकसान। दूर से सुनते आवाज कहीं कट जाती है। जितनी खुराफात है सब कान के जरिए अंदर घुसती चली जा रही। आओ हम नहीं बोलते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक ये कान और आंखें और दिल, तीनों चीजों के बारे में अल्लाह क्या पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। आंखें अल्लाह ने दी, हमें बेजा इस्तेमाल का कोई पावर, हमारी अपनी जागीर नहीं है, हमारी अपनी चीज नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। एक साहब आया, कहा मैं गुर्दा बेचना चाहता, मुझे 4 लाख मिल जाएंगे। मैंने कहा हराम है। कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारे बाप की जागीर ने, अल्लाह की दी हुई अमानत है, खयानत अल्लाह को पसंद। वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। ये हमारी अपनी चीज नहीं है, अल्लाह की दी हुई अता है। अरे बोलो भाई, आप पैसा दे दो, सामान दे दो, लेकिन अपने बदन का कोई हिस्सा बेचना जाए? बात समझ में आ रही है? न समझो तो भी ठीक है, समझ जाओ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। बातें बहुत सारी आ चुकी हैं। तो तय करो आंखों की हिफाजत। अरे बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। लोग ये समझते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गैर महरम पर नजर डाली जाए तो आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। अरे बोलो, पड़ता नहीं पड़ता? औरतें सड़क पे जा रही, लड़कियां जा रही, शादी ब्याह के मौके पर लोग जाते, नजरों को खराब कर लिया करते। वो समझते हैं कि आज हमको बड़ी खुशी, बड़ा कमाल मिला, पूरे बन बिला रहे हैं, कोई कमाल मिलता है। ये बेवकूफी की अलामत। अरे बोलो, है कि नहीं? उसको समझते हैं, बार बार नजर डालेंगे तो लोग हमको थूकेंगे। आका ने इरशाद फरमाया, आँख की जिना का गुनाह पड़ा करता। और बल्कि मोबाइल में जो तस्वीरें देखते, गंदी गंदी नंगी तस्वीरें देखते, अपने ऊपर चादर डाल लिया करते, सड़क के ऊपर घूमते घूमते देखा करते, कभी छत पर चढ़ जाया करते। एक आदमी एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे खड़ा था, मैंने कहा इसको देखो, पूरे पागल है ये। कोई नहीं था, अकेले वैसे लगाता मोबाइल। अरे बोलो, है कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं। ये चीज बहुत नुकसानदेह है। अरे बोलो, है कि नहीं? ये चीज बहुत नुकसानदेह है। जिस तरह किसी की तरफ देखने में आंख की जिना का गुनाह पड़ता है, इसी तरह तस्वीरों को देखने कर भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। कम वम नहीं है। अल्लाह सही तरह जिंदगी गुजारने की, तकवा अख्तियार करने की, अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। और दिल को भी सही किया जाए। वल फुआद, अल्लाह ने फरमाया दिल के बारे में पूछा जाएगा। दिल को लोग गंदा कर लेते हैं। अरे बोलो, करते नहीं करते? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। वो कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिल की पाकी है, हसद से, बोझ से, अदावत और कीना से। लोग न जाने कितने दिल गंदे करते हैं। अरे बोलो भैया, है कि नहीं? बात समझ में पूरी आ रही है? हमको कुछ लग रहा है कि है? हाँ, तो जरा सरवर हिलाइएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। तो ये दिल गंदा करते हैं। बहुत से लोग दिल में गंदगी बिठाते, काहे से? हसद, बुग़्ज़, अदावत और कीना से। अच्छा, बुग़्ज़ और हसद होता कब है? हसद उस वक्त होता है जब सगा भाई मालदार हो जाए, पड़ोसी मालदार हो जाए, रिश्तेदार मालदार हो जाए, तो ये बीमारी अपने आप में बन जाती है।
कोई मालदान ओहदेदार हो जाए, किसी को रुतबा मिल जाए, किसी की शोहरत मिल जाए, यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इज्जत तो अल्लाह देता, जिल्लत भी वही देता, मालदारी भी वही देता, गुर्बत भी। अरे बोलो पक्का है ना? माल कमाने में आदमी को कमाल नहीं हासिल। बड़े बड़े पढ़ने वाले, बड़े बड़े इल्म वाले पूछो तो बेचारे भूखों मर रहे हैं, सुबह शाम कुछ मिल पाए, थोड़ा बहुत इंतजाम, इससे ज्यादा। और आप देखेंगे कि जिसको कोई अकल नहीं, बिल्कुल काला कूला, लंगड़ा लूला, बिल्कुल बेकार आदमी, जिसको अंगूठा लगाने की भी सही तमीज नहीं है, पूछो तो करोड़पति है, माला माल है, क्या उसकी किस्मत है ये? नहीं नहीं, किस्मत नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता माल देता, जिसको चाहता कम देता, जिसको चाहता ज्यादा देता। और सही तो ये है कि माल ही बेहतर चीज होती तो इसके हकदार ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होती। इस पर मैं एक शेर पढ़ूंगा कि जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा। लोग मालदारी को बहुत समझते कि बहुत बड़ी नेमत मिल गई। अरे बोलो समझते नहीं समझते? बहुतों को मिल जाए, फूले फूले घुमा करते, बहुत सीना उना तान के अकड़ के चलते। कोई पूछे भाई साहब कुछ मिल गया आपको? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माल बहुत है, 2-2 सफारी गाड़ियों, कोठी बंगला, 2-2 सब कुछ। तो पूछो भाई साहब ये बाल कहाँ चले गए? एक साहब मिले, कहने लगे कि अल्लाह का करम है मौलाना, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कहा मौलाना जरा दुआ कर दीजिए। तो मैंने कहा जब सब कुछ अब दुआ काहे के लिए? उन्होंने बताया कि 3 गाड़ियां हैं बड़ी वाली, 3-3 मकान है, और लड़के भी अपने काम से लगे हैं। बाद लड़के 2-2 लाख पाते हैं, बाद 1 लाख, बहुत कुछ। तो मैंने कहा वो 4-4 लाख पाए, इसकी दुआ करवा रहे हो आप? कहा नहीं, दुआ इसकी है कि हम बहुत ज़्यादा नींद भी जाती रहती है, बेचैनी रहती है, सर के बालों आधे उतर गए, आधे बच्चे सब झड़े पड़े। तो मैंने पूछा बात क्या है जरा बताओ तो कहा मालदारी बहुत हो गई है, माल को समेटने, उसकी निगरानी में, उसके बचाने में सब गायब है। तो मैंने कहा नींद वाली बात? कहा जब बिस्तर पे जाते हैं आराम के लिए, सोचते वो गाड़ी गई थी, वो नहीं आई, फलाने कारोबार में ये होगा, कहीं ईडी न पकड़ ले, इधर उधर करते, बड़ा लफड़ा है। तो मैंने कहा सुनो, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर, तो बेहतर है ये उलमा बैठे मालूम कर लो। कोई 10,000 पाता, कोई 12,000 पाता, कोई 8,000 पे काम चलाता, बाद लोग 5,500 पाते इमामत करते। पूछो भाई कैसे काम चलता? जरा आप उनसे पूछो। 1.25 लाख पाते, अल्लाह ने पाबंदी लगाई। सब कहने लगे दुआ का। तो मैंने कहा अब कौन सी दुआ? कहा तनख्वाह लंबी चौड़ी, कारोबार बड़ा है। तो मैंने कहा दुआ काहेगी? कहा खाने से महरूमी है, सब कुछ मना। मैंने कहा क्या मना? काजू बादाम अखरोट सब कुछ मना हो गया, और साथ साथ शहद भी मना। मैंने कहा शहद तो जन्नत की ग़िज़ा, वो भी मना? कहा हाँ। कहा दूध भी मना। तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ जब सब मना है। मैं दूध शहद जब सब मना है और गोश्त मना, वो जन्नत की ग़िज़ा है, वहाँ चिड़िया पास्ता वगैरह अल्लाह ने इंतजाम किया। अरे बोलो भाई जब सब मना है। मैंने कहा घी तो बिल्कुल अच्छा लगता हो। कहा घी मना उतना तो दिल पड़ जाएगा। मैंने कहा कुछ बचा उसे? ने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ तो डॉक्टर ने बताया होगा। कहा हाँ, ये बताया है कि रोटी का ऊपर वाला छिलका पतला वाला और मूंग की दाल का पानी, उसी में रोटी डाल दो, जब पिघल जाए तो ऐसा है। मैंने कहा तौबा है यार। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा जरा इधर कुछ बुरा ना मानिएगा। इधर स्टेज पे जो हजरात तशरीफ रखते हैं, कोई 5,000, कोई 7,000, 12, ज्यादा ज्यादा 12 लोग खुदा कहते हैं कि इमाम साहब की 12,000 तनख्वाह बहुत है। कहते बहुत है।
और लेबर की तनख्वाह एक दिन में 500 लगा, उसकी 1500, उसको बेचारे कुछ न आया, 6-7 घंटा काम किया, घर चला गया, चाहे आपका घर बने चाहे बिगड़े, चाहे काम किया चला गया, उसकी तनख्वाह महीने में जोड़ी जाए तो 15,000 हो गई। और एक आलिम दीन की, हाफिज कुरान की और कारी की, इमाम की तनख्वाह कहते हैं 12,000 बहुत इमाम के लिए। और अपने लिए कहते हैं कि मौलाना दुआ करो एक लाख कुछ ऊपरों की आमदनी मिल जाती, हरामों वाली, जिसको देखो ऊपरे वाली। एक साहब कहने लगे हमको मौलाना अल्लाह का फजल है कि तनख्वाह 1,11,000 मिलती है, वो हमारी खर्च नहीं होती, हमको ऊपरी मिलती है। मैंने कहा ऊपर से क्या फरिश्ता पहुंचाने आता है? कहा मौलाना तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने कहा समझा दो नजरा। तो कहा ऊपर वाली ये है कि जो रिश्वत वगैरह मिलता है, किसी का काम करा उसमें मिला, ये वो बात। तो कहा जितनी तनख्वाह है उसकी आधी और ऊपर से ऊपरी वाली मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है, दोज़ख ले जाने के लिए एक दिन का काफी। और बाल आधे बजे थे, आधे गायब थे। अरे बोलो भाई, अल्लाह खिलाता है, मालिक वही है, खिलाने वाला वही है, और नींद भी वही देता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज बनाया। इधर 7-7 घंटे नींद है, उधर 1.5 घंटे में रात गुजरी जा रही है। तो मैंने कहा क्या है ये? अल्लाह का फضل है, अल्लाह जिसको जितना चाहे दे दे। कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाहा जैसा बना दिया, जिसे चाहा जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहु, जिसे चाहा जैसा बना दिया। तो कौन देता भैया? ये सब कुछ कौन देता है? मेहनत से कोई खाली नहीं है। हर आदमी